السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہی ہو گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹے عقبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی۔ پھول پھٹ کر بدبو دینے لگے، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ روایت ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں بھی فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ نارن ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وَامرأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈال دی، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔
इस गुस्ताख खबीस ने दुनिया में भी अजाब का मजा चखा और आखिरत में भी अजाब में ही जाएगी। आखिरत में आग की जंजीरें उसके गले में होंगी और जहन्नम की लकड़ियों का गट्ठा उसकी पुश्त पर लदा होगा। अब्दुल बिन अब्दुल मुतलब, जिसकी कुनियत अबू उतबा थी, कुरैश सरदार और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। उसके वालिद हजरत अब्दुल मुतलब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लौंडे सोबिया को आजाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलाने नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि उस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सबने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा और ये बोले कि आपने हमेशा ही सच बोला है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब आगाह करने के लिए आया हूँ जो दुश्मनों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, खारित हो तुम पर, नौज बिल्ला, तूने हमको इसलिए बुलाया है। उस पर सूरत लहब नाजिल हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आपको बड़ा बुरा कहता और ये कहता कि आप झूठी हैं, इसीलिए अपने अबौ इत्ताद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहे हो। बाद रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सवा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया। अबू लहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने मुखालिफ था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा, मोहम्मद अबतर हो गई हो, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई। नौज बिल्ला अय्याम हज में भी अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता जिससे आपकी एड़ियों तक खून जारी हो जाता। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं जो कि हरफ बा हरफ पूरे हुए। वो बहुत जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अज़ाब से डराया जाता तो कहता, अगर मेरे भतीजे तुम सच्चे हो तो आखिरत के दिन माल और औलाद का नजराना देकर मैं अज़ाब से छूट जाऊंगा। इब्न इसहाक से रवायत है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खामद के बारे में उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नाज़िल हुई है तो वे एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिदुल हराम पहुंच गई। मस्जिद हराम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर के साथ आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक ताला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नजर आए।
उसने पूछा, मुझे मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मजम्मत और रजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं उनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़िम कहते थे। ये कहकर वो वापस चले गई। कुरैश वाले जब मुज़िम कहते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ लोगों, अल्लाह ने किस तरह उनको सब्र मुझसे फेर दिया है। वो मुस्लिम को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था और उसका सूद खोई का कारोबार था। वो लोगों को सूद पर चीजें देकर खुद मुनाफा हासिल करता, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन चोरी करके भी बेच डाला था। अबू लहब की औलाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतैबा ने यह ठान लिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनकी रब के बारे में बड़ी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। उतैबा बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बहुत सख्त कलामी की और सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि उसने चेहरा अनवर की तरफ थूक दिया, मगर वो नापाक थूक बजाय अतहर पर गिरने की बजाय दूर जा गिरा। उसकी गुस्ताखी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, उस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उतैबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने इसे क्या कहा? उसने बताया कि मैंने ये किया। तो वो पूछने लगा, उस पर मेरे भतीजे मोहम्मद ने क्या कहा? उतैबा ने बताया, उसने ये बद्दुआ दी है। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हुई हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। एक दफा अबू लहब एक काफले के साथ शाम रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में जाकर उन्हें कहीं पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आने लगी। अबू लहब ने काफले वालों से कहा, चूंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत एहसानात हैं, तो मैं तुमसे उनका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे उतैबा की हिफाजत करो। बस तुम सारा सामान एक जगह पे सहन में इकट्ठा करो और मेरे बेटे का बिस्तर सबसे ऊपर लगा दो, फिर उस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। अखबार लिखते हैं कि हमने ऐसा ही किया। रात जब सब सो गए तो जंगल से एक शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ ना कहा। उस सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उतैबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ डाला। अबू लहब का बुरा हाल था। वो कहे जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से कभी ना बच सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, अबू लहब, उसके बेटे उतैबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरत लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़कर मरा। रवायत है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा, तो फिर उससे मजीद दाने निकले। अब इन दानों की वजह से बदबू फैलने लगी, तो उसकी औलाद और बीवी ने ये फैसला किया कि उनको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल कर देते हैं, ताकि ये बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो। किसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और उसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही। कोई उसके करीब ना गया। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे छूत के यही बीमारी लग जाएगी जिसे वो मरा है। जो बदबू फैलने लगी तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को कुछ शर्म दिलाई। उस पर उन्होंने उन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई।
जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रजिम किया जा रहा हो। अबू लहब की बेटी जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सफियान की बहन थी, उसका नाम उर्वा बिन्नत हरब था। वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उसके गर्दन में मूंज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और शोखियां मारा करती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उसी गर्दन में आग का तूक डाला जिसे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह पाक हमें भी इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।